Sakhi. Welcome to My Sakhi, the CSR initiative of Jacksonpal Pharma. Scan the QR code on the screen to reach the website mysakhi.in to learn more about the initiative My Sakhi. Today we discuss how to stay fit and fabulous during menopause. For this public awareness session today, Dr. Ragini Agarwal, menopause expert from Gurugram, will discuss these issues with three more experts from across India. From East, we have Dr. Mamta Sarma, Guwahati. From West Central India, we have Dr. Jyoti Jaiswal from Raipur. And from South India, we have Dr. Vanita Medgood from Belgaum. Welcome to all the experts. The session today is courtesy MEMUP. MEMUP is the latest in menopausal hormonal therapy brought to you by Nari Division of Jacksonpal. We welcome and thank all those who have joined in as participants. This web series, Menopause Dialogues, is a part of Jacksonpal's ongoing CSR initiatives to raise awareness and promote better management of women's health. To make today's session more interactive, please keep your questions ready or type in the chat box, which will be addressed by the experts at the end of the session. Dr. Ragini Agarwal, a well-known gynecologist and menopause specialist, she is passionately involved in spreading public awareness on women's health. She's an expert in aesthetic, functional, and urogyne surgery and specializes in female sexual health. She's the director AA Derma Science Complete Clinic for Women's Health in Gurugram, Haryana. She is the incoming Secretary General of Indian Menopause Society. We have with us Dr. Jyoti Jaiswal. She is Professor and Head Department Obs and Gynae, Pandit JNM Medical College, Raipur, and she has held many office positions at Indian Menopause Society, Joint Secretary, Chairperson Quiz Committee, and also President, Menopause Society of Raipur. We have Dr. Mamta Sarma. She's the consultant at Arya Hospital and Women's Healthcare Center at Guwahati. She is CMO Red Cross Hospital, Guwahati, and is the Vice President of Guwahati Menopause Society. And we welcome Dr. Vanita B. Medgood. She is infertility and IVF specialist at Belgaum and is consultant and medical director of Medgood Hospital and Advanced Laparoscopy Center. She is the founder president of Belgaum Menopause Society. We welcome and express our gratitude to the experts present with us today. And now we hand over the session to Dr. Ragini Agarwal. Over to you, ma'am, to begin the session. Thank you so much, Deepika, for kind introduction. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज कल के इस एपिसोड में. मेरे साथ तीन menopause specialist and expert who was passionate about the women health. Dr. Mamta from Guwahati, Dr. Vanita from Belgaum और Dr. Jyoti from रायपुर. हम आज आपको एक इस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही जरूरी है हमें समझना, और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब एक बार मेनोपॉज हो जाता है, अगर उसके बाद आप अपनी आंखें खोलते हैं और सोचते हैं अरे हमें अपने मेनोपॉज को संभालना है, तो थोड़ी सी देर हो चुकी होती है. जैसे कि हम जब प्रेगनेंसी के लिए सोचते हैं तो उसको पहले से अपनी बॉडी को फिट करते हैं, अपने खान पान को फिट करते हैं और साथ में उन 9 महीनों में अपनी देखभाल रखते हैं. तो क्यों ना हम
जिस अवस्था में हमें कई डिकेड जीना है और सबसे बड़ी बिना अपने हार्मोन के सपोर्ट के जीना है, तो उन डिकेड्स को एक बहुत ही खुशनुमा ढंग से जीने के लिए हम अपने आप को पहले से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने आप को उसके लिए फिट करें। फिटनेस बहुत किस्म की होती है, वो सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस नहीं, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, सब कुछ की आवश्यकता होती है जब आप इस मिड एज में जा रहे होते हैं। तो इसके सारे ही पहलू के बारे में आज के इन 3 एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करेंगे, जो कि अपनी अपनी जगहों पे मेनोपॉज के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, कोई अपनी लोकल मेनोपॉज सोसाइटी की डॉक्टर ममता वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर वनीता ने तो बेलगाम में इसको बनाया ही इस सोसाइटी को, जिससे इसके बारे में अवेयरनेस कर सकें, और डॉक्टर ज्योति जायसवाल मेरे बाद आने वाली अगली सेक्रेटरी जनरल ऑफ IMS हैं। तो आज इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू देने के बाद ममता जी आपसे पहला क्वेश्चन करूंगी। सिंपल सी बात सबसे पहले ये उठती है कि हम इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं मेनोपॉज के लिए? क्योंकि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी जीवन की अवस्था है। तो सबसे पहले हर कार्य के पहले भगवान की ब्लेसिंग्स की आवश्यकता होती है। तो इसको हम ये बताना चाहेंगे, जो हेल्दी एजिंग है, देखिए एज तो आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हेल्दी एजिंग का मतलब है जब आप एज हो, आपकी एजिंग आए, तो आप अपनी जिंदगी बिना किसी बीमारी के, ज्यादा जो कुछ बीमारियां तो आएंगी देखिए, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम टोटली डिपेंडेंट ना हो, उसको कंट्रोल करके और एक अच्छे ढंग से जिंदगी को जी सकें। एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और देखते देखते यह माना जा रहा है कि 2030 तक बच्चों से ज्यादा बूढ़े इस दुनिया में मिलेंगे। और ये भी बात सही है कि इस उम्र में हमें बहुत सारी बीमारियां होनी हैं जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को निगेटिवली अफेक्ट करती हैं, यही नहीं सोशल बर्डन भी क्रिएट करती हैं। तो जब हम हेल्दी एजिंग की बात करते हैं तो हम बेसिकली, जैसे मैंने आपको बोला, हम फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ तीनों की ही बात करेंगे। मेनोपॉज के बारे में हम बहुत समय से जान रहे हैं कि मेनोपॉज एक दिन एकदम से आ जाता है, लेकिन उसके पहले का ट्रांजिशन 4 से 5 साल, 6 साल, 8 साल पहले भी शुरू हो सकता है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 40 साल के बाद हमें मेनोपॉज के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। और इस समय जो हमारे यहाँ चेंजेस होते हैं, जिसमें से एक कमर पे बढ़ता हुआ मोटापा, मूड स्विंग, बदन की कमजोरी, बोन हेल्थ की कमी, CVD रिस्क यानी हार्ट पे दबाव, और साथ में जो हमारे प्राइवेट पार्ट हैं वो औरतों के सूखने लगते हैं, वहाँ खुजली मचने लगती है। कैंसर की एक उम्र है जिस समय कैंसर आता है। मेंटल चेंजेस, आपके सेंसरी ऑर्गन्स यानी आई, ईयर, डेंटल, ये सारे चीज़ों पे भी असर पड़ता है। साथ में एक अकेलापन भी आता जाता है, क्योंकि कुछ आप अपने काम से अलग होकर घर में सिकुड़ जाते हो, बच्चे घर छोड़ के निकल चुके होते हैं, तो उस लोनलीनेस से भी आपकी बीमारियों में बढ़ाव बढ़ता है। तो किस ढंग से उससे बचाया जाए? तो डॉक्टर ममता, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि राइट न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, हमें सबको मालूम है कि जब हमारी उम्र बढ़ रही होती है तो ये सबसे बड़े 2 पहलू हैं जिस पे हमें ध्यान रखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसा क्या सोचेंगी कि आप करना चाहेंगी कि जिससे कि लोगों को एडवाइस देना चाहेंगी कि वो एक राइट किस्म का न्यूट्रिशन को फॉलो करें, अपनी लाइफस्टाइल में एब्जॉर्ब करें? Namaskar and a very good everyone. And I am very grateful to Ragini ji for inviting me here, which gives me an opportunity to interact with the general public as well as the physicians. So you know that health is important. Health is wealth, and Sarira Madhyam Khalu Dharma Sadhani. But sometimes, due to lack of right knowledge at the right time, we may not be able to prevent some chronic diseases. In a manner that Dr. Ragini has already said, that antenatal checkups are very important. So with good antenatal checkup, we can prevent maternal mortality and infant mortality.
So menopausal health is so important, like we can prevent many chronic diseases and also the financial burden that will come in later years. So as we age, there is a decline in the estrogen, that is a primary hormone, in the स्त्री hormone बोलते हैं. मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए I'll be continuing in simple English. So as we age and have menopause, so there is decline in the estrogen level, and there is the slowdown of the metabolic rate, and there is also fat deposition along the abdominal area, which we call it central obesity. And so the nutritional requirement also changes. So in the middle age, we cannot have the calorie like we had in our 30s or 40s. So we have to cut down our calories, but how much will be discussing now. Calorie requirement, I have already said, and well-balanced diet will provide us not only the macronutrients, which the carbohydrates, protein, and fat, but also the micronutrients, the vitamins and minerals. All those things are also are required very much in our this middle age period. So we should be taking whole grain food and fresh vegetables and fruits. Whole grain foods will provide us not only the complex carbohydrates, but also along with that will provide us the micro and micronutrients and like vitamins. So it is also, they are also good source of protein. आजकल तो millet का भी एक आ रहा है फिर से, so we can adopt that also. And phytonutrients, we can the vegetables also provide us phytonutrients, the phytoestrogens that can give us some support in our hot flashes. It is also said that some Asian countries, Asian women have less hot flashes than do the European or Mediterranean countries, because they take more vegetables. But because we take more vegetables, fruits, most of our people are vegetarian. That's why we take more phytoestrogens, and maybe the hot flushes are less in some of our women. So another one thing that I want to stress that refined sugar, refined oil, and refined flour, all this to be avoided. And if we take oil also in combination, it should be taken so that it provides the most of the essential fatty acids. Like mustard oil, most of us are taking, so we can combine with granite oil, even olive oil, but olive oil cannot be taken, cannot be, extra virgin olive oil cannot be cooked because it has less smoking point. So in our day-to-day life, we can combine one or two or three cooking oils so that we have the most of the essential fatty acids. So protein requirement is also very important in this elderly population because there is more wear and tear. But we should also take care into account because most of these women may also have renal problems. So usually the recommendation is 1 to 1.2 gram per kg body weight. But they have to take it precaution because some the renal patient may have to take less protein. And protein supplement is also an option, especially in diabetic women, because they need some specific proteins. So another important thing, the supplements. Supplements is most of us are prescribing calcium and vitamin D to our patients. Other than when vitamins are needed, then only prescribe. But calcium and vitamin D are most important for the bone health. And vitamin D is also called sunshine vitamin, but it can synthesize in our skin by the help of sunlight. But as we age, the metabolism in the skin also decreases. That is, the power of the skin to produce vitamin D reduces. And there are other factors affect also, like complexion of the skin, the weather, the smog, or the atmospheric pollutants. So it is better to take vitamin D and calcium together with the consultation of the healthcare professionals. And
there is another most of the things that the menopausal troublesome menopausal symptoms can be tackled with exercise. So exercise is a very integral part of the maintaining health. When we talk about exercise, if someone is not exercising at all, they can start in a slow pace in light exercises and increase the duration. But in the long run, they can increase the intensity. So usually it is recommended that 30 minutes of moderate intensity exercise per day, or 150 to 300 minutes of exercise per day is per week is recommended, or 75 minutes of some intense exercise. But this will also depend from individual to individual, because it will depend on the requirement of the patient, the comorbidities they have. And so exercise regime should be well balanced. It should provide both the endurance exercise, the weight bearing exercise, which is helpful to build our muscles and bones, and also a balance exercise, which also stimulates the neuromuscular system. And a good exercise regime can target many of the menopause related troublesome symptoms, such as weight gain, obesity, the high lipid profile, then sleep disturbances, depression, anxiety, and also it increases the strength of our bones and muscles. So it prevents osteoporosis and sarcopenia, and also reduces the risk of cardiovascular diseases, uh, diabetes mellitus, and cancers, and even Alzheimer's disease. And there is a very good study which showed that if we have a very good uh, grip strength and a good vitamin D level, it can prevent even dementia. So, protecting our health involves simple exercise and diet, which will help us in the long way. And I want to tell something about the alcohol and smoking also. Nowadays, it is very common in our society. Alcohol should be stopped altogether, and smoking should be stopped altogether. But alcohol, it can be reduced in amount, because in women, the same amount of alcohol will produce more adverse effect than in men. And it also, there is also more propensity for fall and injury. So these two things can only damage our health, and if possible, should be avoided altogether. So with this, I think I have spoken most of the things, and if anything else, then I'll cover it later. या थैंक यू सो मच डॉक्टर ममता। तो जिन लोग इसको मैं अगर समराइज करूं डॉक्टर ममता की इस जो उन्होंने हमको बताया, तो व्हाट आई कैन से कि न्यूट्रिशन यानी कि आपका खान पान बहुत महत्वपूर्ण है इस उम्र में। और हमें जो सबसे मेन चीज देखनी है कि हमारी कैलोरीज कम हो, लेकिन हमें उसकी गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी पे ध्यान रखना है। फ्रूट्स वेजिटेबल को ध्यान रखना है, और उसमें हमें प्रोटीन का अमाउंट अच्छे से ऐड करना है। बड़ी उम्र में खाना कम हो जाता है, इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भी खाना खाएं उसके अंदर प्रोटीन की एक अच्छी मात्रा हो। और साथ में हमें जो जितनी भी हमारे मैन मेड चीज़ें हैं, जंक फूड है, और उसको हमें कभी कभी के लिए रख लेना चाहिए, उनको हमें ज़्यादा रूटीन के उसमें ही लेना चाहिए। साथ में उन्होंने हमें एक्सरसाइज के बारे में बताया है कि एक्सरसाइज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इस उम्र में आपकी मसल्स और बोन्स कमज़ोर होने लगते हैं। मसल्स एंड बोन्स को कमज़ोरी से रोकने के लिए हमें विटामिन डी, कैल्शियम लेना बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो सबसे बड़ी चीज देखनी है कि जो फूड है, जो खास करके केयर गिवर्स हैं, ये चीज उनके लिए है, या आपके परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आपको ये देखना है कि चूंकि उनके डेंटल हेल्थ के कारण वो खाने को ठीक से चबा नहीं सकते हैं, तो उनका जो खान पान है वो
ऐसा होना चाहिए जिससे वो आराम से खा सकें, उसको एंजॉय भी कर सकें और उनको फायदा भी पहुंच सके। और यही नहीं, इस उम्र में चूंकि आप बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं, सीमित आमदनी हो जाती है, तो उसके बजट के हिसाब से भी हमें, जब हम एज ए डॉक्टर भी बताते हैं, तो हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। और एक्सरसाइज के लिए सिर्फ एक ही चीज है, आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, खाली वॉक करने से काम नहीं चलेगा। तो घर में कोई ना कोई वेट की एक्सरसाइज या थेराबैंड की एक्सरसाइज भी लें। जिम जाना कोई जरूरी नहीं है, आप अपना वेट घर में पानी की बोतल से भी बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि आप शुरू से अभी शुरू करें और अंत तक, जब तक आप चल रहे हैं तब तक आप चलते रहें, तभी आप चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात को समझ गए हैं कि चलते रहने के लिए चलते रहना आवश्यक है। सो इसके साथ में अगला क्वेश्चन, डॉक्टर ज्योति आपने ज्वाइन कर लिया है? जी मैडम। तो आपकी ओपीडी में, एक बड़ी ओपीडी में, और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ओपीडी है, जिसमें आने वाली जो महिला है बहुत हाई फाई कैटेगरी की नहीं है, तो वो आपके पास आती है और आपको बोलती है उसके पीरियड्स ना के बराबर रह गए हैं, लेकिन वो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहती है। तो इस समय आप कौन सी बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग उसको बताएंगे और किस ढंग से आप उसको उन टेस्ट के लिए और चीजों के लिए क्या समझाएंगे? पहले तो रागिनी मैडम, आपको, हिंदुस्तान से आए बाकी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को और सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते। बहुत खुशी की बात है कि हम आज अपने स्वास्थ्य के बारे में, मिडिल एज एंड बियॉन्ड के महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हम आज खुलकर बात कर रहे हैं। और मैडम ने मुझे एक ऐसी सिचुएशन अभी बताई है जिसमें एक मरीज जो 50-52 साल की है और अपनी ओपीडी में हैवी मेंसेस की परेशानी के साथ में प्रेजेंट हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इसके दो पहलू हैं। एक तो स्पेसिफिक कंडीशन जिनके साथ मरीज हमारे पास आज दिनांक में आई है, उस स्पेसिफिक कंडीशन को लेकर हमें जो उसके इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, जो जांचें करानी है, और एक ओवरऑल अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। एक महिला आपके पास अस्पताल में आई हुई है, तो हम क्या क्या चीजें उसकी करा सकते हैं जो उसकी आगे आने वाली जिंदगी की बेहतरी के लिए किए जा सकते हैं। इन दोनों पहलुओं पे मैं बात करना चाहूँ। ऐसी ये महिला जो इस उम्र में सामान्यतः 40 साल के ऊपर के बाद ये समस्याएं लगातार देखने में आती हैं कि महिलाएं कंप्लेंट करती हैं कि मोटापा बढ़ रहा है या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है उनको। ऐसी स्थिति में क्या करें? एंड खास तौर पे अगर महिला 50 साल से ऊपर की है और फिर भी उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस स्थिति में हमको ये तो निश्चित रूप से देखना है कि वो पेशेंट मेनोपॉज के आसपास की उम्र में आ रही है। मेनोपॉज आने से पहले वाला जो समय होता है वो पेरीमेनोपॉज कहलाता है। यहाँ से हमारी ओवरीज जो होती हैं, हमारी अंडाशय की ग्रंथियां जो होती हैं, उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है और सारा खेल हार्मोन का और मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन का इनके ऊपर निर्भर करता है। तो जब इनकी क्षमता कम हो जाती है तो माहवारी कभी कभी जल्दी आने लग जाती है, कभी कभी बहुत दिनों के बाद माहवारी आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत हैवी आती है। और अगर मान लीजिए 50 साल के बाद भी माहवारी आ रही है, तो सामान्यतः अपन देखेंगे कि हिंदुस्तान या साउथ एशिया के देशों में जो है एज रजोनिवृत्ति की जो मेनोपॉज की है वो 47-48 साल के दरमियान ही है। 50 तक जा सकती है बट सामान्यतः इस उम्र में हो जाता है। तो अगर 51-52 के बाद भी माहवारी नहीं गई किसी मरीज की, तो ये एक देख रेख करने का विषय है जरूर। तो इस मरीज को मैं एडवाइस करूंगी कि ब्लीडिंग क्यों आ रही है उसके लिए यूट्रस से रिलेटेड, गर्भाशय से रिलेटेड जो जांचें करानी है वो मैं कराऊं, उसको सोनोग्राफी के लिए भेजूं, देखूं कि यूट्रस में अंदर कोई परेशानी चल रही है, अंदरूनी परत में कोई दिक्कत है। इसके अलावा वो साथ में आई है तो बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत सारी मैं जरूर उसकी कराना चाहूंगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर की, वजन के बारे में उससे जानकारी लेना चाहूंगी कि सडनली कोई वजन में बदलाव तो नहीं आया है। एक बड़ा वर्ड आप लोग सब सुनते होंगे कि हिंदुस्तान जो है वो डायबिटीज की कैपिटल बन रही है,
और यहाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत हो रहा है। तो क्या है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या ये जिसमें कि अब देखेंगे इस उम्र की महिलाएं जो है पेट पे चर्बी, मोटापा ये सारा बढ़ जाता है, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस बढ़ जाती है। तो इन सारी चीजों की स्क्रीनिंग उसको और असेसमेंट बेसिक चीजों का उसको एडवाइस करना चाहूंगी। उसके लाइफस्टाइल के में क्या उसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जो वो नहीं कर रही हो, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में अभी शर्मा मैडम ने काफी सारी चीजें बताई, उसके बारे में उससे बात करना चाहूंगी। इस उम्र और इसके बाद आने वाले समय में लोगों को किस प्रकार के वैक्सीनेशंस के लिए अपने आप को तैयार करना है उसकी जानकारी उनको देना चाहूंगी। और प्राइमरीली उनसे मैं ये कहूंगी कि एक रूटीन हेल्थ चेकअप, अपन एक कॉमन भाषा में कहते हैं कि मास्टर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। तो क्योंकि वो अभी आई है तो मैं उस मास्टर हेल्थ चेकअप के लिए उसको मैं कहना चाहूंगी कि अपना एक मास्टर हेल्थ चेकअप भी करवा लो। जो मैं अपने सभी मरीजों को साथ में कहती हूँ कि बर्थडे पर या उस महीने में अपने आप को एक गिफ्ट दिया करो कि एक साल में एक मास्टर हेल्थ चेकअप जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हो, वजन हो, जिसमें आपकी नॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोसीजर हो, आपका शुगर का, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो, ये सारी चीजें आप करा सकें, इसके बारे में उसको कहना चाहूंगी। साथ ही क्योंकि आप देख रहे हैं कि पुराने जमाने में हम कैंसर वगैरह के बारे में इतना नहीं सुनते थे कि इस मरीज को कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। अभी बहुत ज्यादा सुनाई में पड़ता है कि कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। वो क्यों ऐसा सुनाई पड़ता है? क्योंकि पहले इन्फेक्शन की डिजीजेस से लोग बहुत जल्दी एज में, एवरेज एज जो थी वो काफी कम थी। अभी एवरेज एज जो है 70 के पार है। इसका मतलब हमें मेनोपॉज के बाद बहुत सारे दिन अपनी जिंदगी के बिताने हैं, और ये बढ़ती हुई उम्र में कई सारे कैंसर्स भी आने की संभावनाएं होती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है या बच्चेदानी का कैंसर होता है, ओवरी का कैंसर, बहुत सारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं, गुदा से के आसपास के एरिया के कैंसर होते हैं, ये वाले कैंसर्स भी काफी कॉमन है। और लंग कैंसर्स भी एक बड़ी समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि लंग कैंसर सिर्फ मेल्स में ही होंगे, फीमेल्स में ही नहीं होंगे। आजकल स्मोकिंग जो है इट इज रेम्पेंट इन मेनी एरियाज, और बढ़ता हुआ जो वेस्टर्नाइजेशन हमारा हो रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे कि काफी स्मोकिंग, और स्मोकिंग ना भी कर रहे हो तो पोल्यूशन है, आप इतना सारा व्हीकल से रिलेटेड कार्सिनोजेनिक एजेंट्स निकलते हैं हवा में। तो लंग कैंसर की स्क्रीनिंग, ये सब भी, मतलब डराऊंगी नहीं मैं उसको, लेकिन साथ में उस मरीज को मैं ये भी कहूंगी कि आप आए हैं तो ये सारी चीजें करवा लीजिए। एक एब्डोमेन का, पेल्विस का सोनोग्राफी करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कैंसर्स, कैंसर्स हमेशा दबे पांव आता है। वो कभी भी आपको बता के नहीं आता। सिम्टम तब बताता है जब वो शेर हो चुका होता है, जब उससे लड़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब कोई समस्या आई नहीं उससे पहले तभी हम स्क्रीनिंग कहते हैं, डायग्नोसिस हम कहते हैं बाद में। जब कोई चीज आ गई उसके बाद पता लगाया तो डायग्नोसिस, और स्क्रीनिंग कोई चीज आई नहीं है अभी, हमें पता करना है या आने की संभावना है तो पता करना है, वो चीज होती स्क्रीनिंग। तो उनको स्क्रीनिंग के लिए मैं कहूंगी। साथ ही इस समय आई हुई पेशेंट को मैं और जनरलाइज चीजों के लिए जो उम्र के साथ साथ परेशानियां जैसे आती हैं, जैसे उम्र के साथ क्या परेशानियां आ जाती हैं, आती हैं कि कि आंखों में भी समस्या आने लग जाती है। 40 के बाद चश्मा लगना पक्का हो जाता है, 40-42 के हुए चश्मा आपको लगना शुरू हो जाएगा। 60 के आसपास आप आए आपको कैटरेक्ट की समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। चमड़ी में बहुत सारे नए टैग्स आ जाएंगे, दांतों का हिलना शुरू हो जाएगा। सो वो सारी चीजें कि आपको दांत भी दिखाना है, आपको डेंटल, मेंटल, आई, ईयर, सभी चीजों में परेशानियां होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। और साथ में ब्रेस्ट की जैसे कैंसर्स के बारे में मैंने बताया, तो ये एक रूटीनली खुद की जांच, और साथ में डॉक्टर से साल में एक बार जांच। फिर डॉक्टर खुद ही आपको बता देते हैं कि इस चीज की स्क्रीनिंग आपको 2-2, 3-3 साल में करानी है, इसकी 5 साल में करानी है। ये सारी चीजें हमको उसको साथ में बतानी चाहिए। और साथ में बोन हेल्थ और आपकी मसल हेल्थ के बारे में डॉक्टर शर्मा भी बोल चुकी हैं कि उस बारे में हमें जानकारी पेशेंट को देना चाहिए।
है। और इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए डेफिनेटली मैं सोनोग्राफी कराऊंगी। जो मैडम ने स्लाइड दिखाई कि पेशेंट एक ब्लीडिंग के साथ में आई है ओपीडी में, तो उसको मैं सोनोग्राफी कराना चाहूंगी और उसका पेप स्मीयर कराना चाहूंगी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। पॉसिबल हुआ डीएनए के साथ तो वैसा, नहीं तो प्लेन पेप स्मीयर या वीआईए करवाऊंगी। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, जनरल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, साथ में सोनोग्राफी या मैमोग्राफी, ये चीजें मैं एडवाइस करना चाहूंगी। थैंक यू डॉक्टर ज्योति। तो यहाँ जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही क्लियर हो रहा है कि हम जब आपसे स्क्रीनिंग की बात करते हैं उसमें हमारा कोई अल्टरनेटिव मोटिव नहीं होता है कि जी डॉक्टर के पास गए उसने इतनी लंबी लिस्ट थमा दी। ये एक बहुत बड़ा मिथ आप लोगों के दिमाग में है, क्योंकि जब बीमारी हो जाती है तो उसको हम पीछे नहीं ले जा सकते हैं। ये समय है कि हम पहले से स्क्रीन करके और या तो उससे आपको बचा सकें या अर्ली स्टेज में आपकी बीमारी पकड़ के आपका इलाज कर सकें। बढ़ती हुई उम्र को रोका नहीं जा सकता है, बढ़ती उम्र के साथ आते हुए प्रॉब्लम्स को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन रोका जा सकता है। क्या मतलब, क्या समझे इसका कि आएंगे, लेकिन अगर हम स्क्रीन करेंगे तो हम उसकी रोकथाम भी कर लेंगे। तो आप ये देखो कि हमारी जिंदगी कितनी बढ़िया होने जा रही है। जब हम मिड लाइफ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 40 से 65 साल की, यानी कि जिसको हम गोल्डन ईयर्स कहते हैं वो 40 से 65 है। और अब WHO ने भी 65 के बाद को ही बुढ़ा कहना शुरू किया है। तो अब आप में से जो भी 50-55 के सीधे बैठ जाइए, अभी आप बुढ़े नहीं हुए हैं। 65 के बाद ही आप ओल्ड एज में घुसेंगे और तब भी आप न्यू ओल्ड कहलाएंगे, यंग ओल्ड कहलाएंगे। तो कितनी लंबी जिंदगी हमें जीनी है, तो हम उसको गोल्डन एरा के बाद अब एक प्लैटिनम एरा भी आ गया है, दोनों को हमें अच्छी तरह से जीना। इसीलिए हमने 3 डॉक्टर आपके साथ लिए हैं। पहले आपकी मिड लाइफ में घुसने के पहले की फिटनेस हमने करा दी डॉक्टर ममता से। तो अभी आपने हौले हौले आप प्री मेनोपॉज में घुसे, अभी तो आप बहुत यंग हो, 40 के अराउंड हो। तो डॉक्टर ममता ने आपको बताया कि आगे आने वाले सालों को आप कैसे संभालोगे। पर डॉक्टर ज्योति ने आकर आपको बताया कि जब आप मिड लाइफ में पहुंच गए तो किस ढंग से आप स्क्रीन करो और अपने आगे आने वाले समय को और अच्छा बनाओ, जिसमें से हमें कैंसर सोचना पड़ रहा है, क्योंकि पहले कैंसर इतना नहीं होता था, क्योंकि हम 50 साल तक इस दुनिया को बाय बाय कर लेते थे, 55 साल तक। अब क्या है, बाय 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 चलता रहता है और काम चलता रहता है। तो डॉक्टर विनीता, हम आपके पास आते हैं। हेलो, थोड़ा नमस्ते सा, जी। नमस्कार। एक तो 2 क्वेश्चन भी इसमें आ गए, उनका भी आप जवाब देंगे, और साथ में एक बहुत ही जरूरी चीज जो मैं आपसे पूछूंगी। बच्चों को तो हम दौड़ के पोलियो के टीके, डीपीटी के टीके, हेपेटाइटिस बी Yeah. के लगाते चले जाते हैं, और एडल्ट वैक्सीनेशन पे तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि इतनी वैक्सीन हमारे पास आ चुकी हैं जो कि बड़ी उम्र में अगर लग जाएं तो शायद आईसीयू का लाखों का बिल ना बने लोगों का। तो वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत नेग्लेक्ट है, उसके बारे में हम चाहेंगे आप हमारी सारी बहनों को डिटेल में समझाएं। और साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जो कि किसी ने सर्वाइकल स्मीयर के लिए पूछा है कि हमें पैप स्मीयर क्या हर साल कराना चाहिए, मैमोग्राफी क्या हर साल करानी चाहिए। तो थोड़ा सा, हालांकि डॉक्टर ज्योति ने बताया, लेकिन आप सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। Yeah. ठीक है जी। This pap smear is the one screening test for to detect the cervical cancer, to screen, and this is it starts at the age of 25 and it is done once in 3 years. साल को जरूरत नहीं है. If there are 3 consecutive tests come negative, then it has to be repeated once in 5 years. And if there is any suspicious lesion, ऐसा कुछ पता लगे तो colposcopy, और इसके साथ साथ co-testing, HPV testing, because HPV is one virus which is बहुत ही खतरनाक है, and 90% of these cancers are because of HPV virus. Usually it is it gets attacks when they become sexually active. So now all must be knowing about HPV vaccination also. Usually it is given in the adolescent, but from the age that is 9 to 16 and from 16 to 25. This is recommended.
and from 27 to 45 years tak, it is still recommended by the FOXI because it may be helpful for those who have not vaccinated earlier and maybe a new partner. It is helpful in those cases. Then coming to this mammography usually is recommended after the age of 35, and it's once in 3 years until the age of 65. And apart from mammography, ultrasonography can be done. And we have some high risk cases like a family history of breast cancer and this one, other tests if they are positive. Then in those cases, it can be done on a yearly basis. So this is all about breast cancer and cancer cervix. Then coming to other vaccinations. One is about, actually, to tell you frankly, we ourselves were not aware of adult vaccinations in our practice. You truly said. Then coming to after the COVID, I think almost it has shaken the whole world. And we, post-COVID, immunity of the people have decreased, I can say. We are seeing many patients with a respiratory infection, and aging itself is a risk factor, and our immunity also gets suppressed. So for those women, I feel vaccination is a must. And they have recommended flu shots for all the adults, a single shot. Usually every year it has to be taken for a season, and September, October is a right month for the flu shots. And for those above 65 years, if they have any adjuvant risk factors, even they have to receive the vaccination. Then FOXI also recommends for these flu shots in a pregnancy. This is to prevent mother and the child also. Then coming to tetanus toxoid. So that was commonly given during pregnancy, but in all have to take a booster dose of tetanus and TD vaccine once in 10 years. This is to prevent the tetanus and whooping cough. Then coming to that varicella vaccine, usually 2 doses are given. And for those who have never received earlier, or for those who have not suffered from chickenpox. So that varicella vaccine is given in 2 doses. Next comes to the herpes zoster. This is also called Schindler's vaccine. This is given at the age of 50, 2 doses intramuscular. This is to prevent the Shigella disease itself and post-herpetic neuralgia. Then coming to the important one is hepatitis B vaccination. And all the professionals have to receive this hepatitis B vaccination, at least a booster dose yearly. And those at risk, that we all health professionals are at risk, and those who are working in a laboratory or those who are working in a high risk cases atmosphere have to receive this hepatitis B. If a wife comes positive, then it is transmitted by the body fluids. Even the husband has to receive all the 3 vaccines of hepatitis B. And those who are associated with hepatitis C and chronic liver disease, even they recommend vaccination in those patients. Anything else? Thank you so much, Dr. Vanita. One more about the RSV, that is respiratory syncytial virus. And the CDC recommends a single dose of RSV vaccine for women more than 75 years and between 60 to 74 years if they are at risk, like maybe associated asthma, COPD, and the respiratory problem. Even they have to receive this shot, RSV. So thank you, Dr. Vinita. देखिए, आज हमने जो आप लोगों से डिस्कशन किया स्टेइंग हेल्दी का, तो इसको हम 3 पहलू में बांट सकते हैं। एक पहलू ये है कि आपने अपनी
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अपने आप क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी को ठीक रखने के लिए। और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज से नहीं, एडोलसेंट एज से चाहिए, तभी आपको पीसीओडी से लेके मोटापे से लेकर के सारी बीमारियां नहीं होंगी। दूसरे जो प्रॉन्ग थी वो थी कि आपके क्या क्या जांच पड़ताल डॉक्टर आपको ऑर्डर करेगा। और तीसरा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिवेंशन के लिए है, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा शब्द है जो, जैसा डॉक्टर विनीता ने बोला है, बहुत ही सच बोला है कि कोविड के बाद लोगों को उसका महत्व समझ में आया है और इस वर्ड का मतलब समझ में आया है कि कितना जरूरी है। और यही नहीं, एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कशन भी ज्यादा उसी के बाद से होना, हालांकि सदियों से ये होता आ रहा है, लिखा हुआ है कागजों में, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया गया है। तो अगर हम ये देखें कि हम बात यहाँ पर सिर्फ करेंगे 50 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए, शिंगल वैक्सीन, अगर आपके घर में किसी बच्चे को चिकन पॉक्स होता है तो बहुत हाई चांस है कि आपको हर्पीस जॉस्टर नाम की बीमारी, जिसमें कि दाने निकल आते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक होने के बाद भी वो दर्द नहीं जाता है, उससे बचाती है, जिसको हम हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं। तो ये एक नई वैक्सीन है, कुछ सालों से मार्केट में आई है, जिसकी 2 डोजेज हैं जो हमें लगानी चाहिए। दूसरा फ्लू वैक्सीन हर किसी को साल में एक बार लगाना चाहिए। और एक ये न्यूमोकॉकल वैक्सीन है जो कि आपको लगेगा बड़ी महंगी वैक्सीन है, लेकिन ये वैक्सीन हर साल नहीं लगती है, और जो आईसीयू का बिल है उससे सीनियर लोगों को बहुत अच्छे से बचा लेती है, खास करके अगर आप डायबिटिक हैं, आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो आपको स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर ज्योति ने भी बताया, डॉक्टर विनीता ने भी बताया कि आपको के कैंसर इस उम्र में जो बढ़ रहे हैं, जिसमें से ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है, खुद भी अपने हाथ से छू करके आप देख सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हर साल करा सकते हैं, और अगर आपको कोई रिस्क नहीं है तो मैमोग्राफी 3 साल पे कराइए, 4 साल पे कराइए, कोई जरूरी नहीं है हर साल आप रेडिएशन लीजिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड पेट का, ब्रेस्ट का कराना बहुत जरूरी है। एक ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो कि बहुत ही जरूरी है कि हम उससे अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। साथ में एक पॉइंट और जाते जाते, जब मैं अगला क्वेश्चन अपने साथ के एक्सपर्ट से करूंगी, उससे पहले एक, इस सब्जेक्ट को क्लोज करने के पहले, जो हैवी ब्लीडिंग है उसको प्लीज इग्नोर मत करिए कि इस उम्र में मेंसेस के जाने के कारण हो रही है, ऐसा नहीं है। कुछ ना निकले बहुत अच्छी बात है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार ये आने वाली बीमारियों की पहली निशानी होती है, जिसमें आपके यूट्रस का कैंसर टॉप पे है, आपके ओवरी में ऐसे ट्यूमर हो सकते हैं, ओवरी के स्क्रीनिंग का कोई टेस्ट नहीं है। अगर आपकी ओवरी में कई बार कैंसर ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं और आपकी झिल्ली यूट्रस की मोटी होकर ब्लीड करने लगती है, अर्ली स्टेज में अगर कर दिया जाए तो आपकी जिंदगी निकल जाती है, वरना तो फिर क्या बोलूं। तो डॉक्टर ज्योति, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है इसमें जी चैट बॉक्स में कि मैं 42 ईयर ओल्ड हूँ और टू मच स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है, मेरा बीपी भी कम हो जाता है, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगी? और उसके साथ ही साथ मैं सभी से चाहूंगी कि आप लोग अपने इनपुट्स दें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोगों ने मेंटल हेल्थ नहीं टच किया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों के लिए कैसे देखा जा सकता है। जी मैडम, जब मैं स्क्रीनिंग के लिए बता रही थी तो मैंने कहा था डेंटल, मेंटल, आई, ईयर सभी टाइप की स्क्रीनिंग चाहिए। तो मेंटल स्क्रीनिंग काफी सारी तो पेशेंट जो है ना खुद भी कर सकते हैं फर्स्ट, एंड देन दे कैन आइडेंटिफाई कि हाँ हमें जरूरत है इस विषय पे बात करने की, काउंसलर्स के पास जाने की या ट्रीटमेंट लेने की। क्योंकि देखिए इस मिडिल एज में जब पेशेंट एंटर हो गई, 40 से 60 साल के बीच वाली महिला के पास बहुत सारी कामों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। वो पेशेंट्स वो घर में अकेले रहते हैं, बच्चे जो हैं अपने अपने जॉब, शादी ब्याह के बाद सेटल हो गए होते हैं, तो ये इनका घर में अकेले, जैसे चिड़िया का घोंसला खाली हो जाता है, ऐसे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जैसी एक सिचुएशन होती है, जो कि एक मेंटल स्ट्रेस ही है किसी पेशेंट लेडी के लिए, जो शुरू से दौड़ भाग कर रही है, पहले अपने प्रेगनेंसीज में बिजी है, बच्चों को बड़ा करने में बिजी है, स्कूल भेजना है, यहाँ भेजना है, ये करना है, और अब अचानक से जो है वो घर में
खालीपन, या फिर बहू आ गई है, सब काम देख रही है, अब हम बैठे हुए हैं, उससे चिड़चिड़ हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्यों ये बदलाव आते हैं, ज्यादातर फैमिली के लोग की, अब ये जो है ना 50-55 के आसपास की जो भी महिलाएं होती हैं, उनके लिए कॉमन एक कहने का वो रहता है, खासतौर से, बल्कि मैं 50-55 भी लेट ही कह रही हूँ, जैसे इन जिन्होंने बात की उन्होंने कहा है कि मैं 42 साल की हूँ। तो इस 40-42 साल की उम्र के बाद जो हार्मोनल परिवर्तन आने वाले होते हैं, और फिर मेनोपॉज के दौरान आ गए होते हैं, धीरे धीरे चल रहे होते हैं, और फिर थोड़ा, तो ये जो सडन परिवर्तन होते हैं हार्मोन्स के, इनका हमारी मेंटल हेल्थ पर जो है वो बड़ा सारा प्रभाव रहता है। ये हॉर्मोन्स न सिर्फ हमें बॉडीली ब्यूटीफुल एंड एक्टिव रखते हैं, बट ये मेंटली भी हमको काफी स्ट्रांग रखते हैं, बट इनके परिवर्तन के साथ हमें मैच करके चलना तो है। तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो आ रही है, वो आ तो रही है, उसको मैनेज करने के लिए कुछ चीजें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ मैनेज करी जा सकती हैं, जैसे कि आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल अगर अपनी रखते हैं, तो कुछ हद तक जब माइल्ड एंजाइटी डिप्रेशन रहता है, उससे आप कई बार उससे लड़ जाने की क्षमता आप में डेवलप हो जाती है। लेकिन सिर्फ इसी पे भरोसा नहीं रख कि भाई हमने रोज योग कर लिया, ध्यान कर लिया, तो हमारी मेंटल इलनेस या एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, ये ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक नहीं। इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपकी पूरी बात सुनेंगे। आप अपने फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके आप उनसे बात करिए। दे विल आइडेंटिफाई कि वाकई आपको दवा की जरूरत है या नहीं है। आप खुद मत डिसाइड कीजिए कि मुझे दवा की जरूरत है या नहीं है, मैं योग ध्यान से अकेले ठीक हो जाऊंगी या नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसे रहती हैं जो बहुत थोड़े से मेडिकेशन या टेक्निक्स भी बताते हैं कि हाउ टू कोप अप विद दीज थिंग्स। उन चीजों के साथ हम सेटल डाउन कर लेते हैं। और ये भी बात है कि कई बार जब हम इग्नोरेंट रहते हैं इन चीजों के लिए, पेशेंट को थोड़ा डिप्रेशन लग रहा है। डिप्रेशन क्या है, मतलब 15 दिन से ज्यादा हो गए, आपको कोई ऐसे खास ट्रिगर नहीं है। भाई देखिए, किसी के घर में कोई बड़ी परेशानी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो समझ में आता है कि इंसान को कुछ दिन उसकी परेशानी रहेगी, उसका मूड लो रहेगा, या उसे रोना आएगा। लेकिन जब ऐसी सब कोई समस्या नहीं चल रही है, फिर भी किसी पेशेंट को मूड एलिवेटेड ही नहीं लग रहा है, ठीक ही नहीं लग रहा है, हर बात पे गुस्सा आ रहा है, हर बात पे ओवर सेंसिटिव हो जा रहे हैं, या रोना आ रहा है बिना बात के, 15 दिन से ज्यादा ऐसा हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। इसके लिए उन्हें डेफिनेटली जाके बात करनी चाहिए। कुछ चीजें खान पान की व्यवस्था से ठीक की जा सकती हैं, कुछ चीजें मेडिकेशन से ठीक की जा सकती हैं। तो इसमें हम इस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर ज्योति, आपने एक बहुत ही अच्छी बात जो बताई कि हमेशा दवाई की आवश्यकता नहीं होती है, इवन हम साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके थेरेपी लेके भी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर ममता, अगर एक पेशेंट आपके पास आती है जिसको कि आपकी मेनोपॉज प्रैक्टिस में और आपके शहर में साइकोथेरेपिस्ट वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उसको हल्की सी एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, तो वो कहती है आखिर मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरा मूड एलिवेट हो जाए। आप अपने प्रैक्टिस में पेशेंट को क्या बताना चाहेंगे? आपकी आवाज म्यूट है और अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर विनीता, आप भी इसके बाद इसमें कमेंट Yeah. करिएगा। Okay. See, many symptoms are common in the early mood changes and mood swing or lack of cognition or brain fog, we say. These symptoms are common, but they're short-lived and they may be associated with any incidents, and they go on their way, on their own. Or maybe with psychotherapy or other calming exercise like yoga and pranayama. But if they persist, then seriously we have to think about it and consult a psychotherapist. What is your question? Madam, I want to add one Sometimes, thing, madam. yeah, हाँ, बताइए। this vasomotor symptom, there is a relation between vasomotor symptoms and going into depression. There is a correlation also. So we can, at least from our menopausal aspect, we have to give a proper treatment, and whether the sleep is adequate, even the inadequate sleep and lack of hydration, all these things add to the actual symptom.
So we are detailed history taking, and there is a list of questionnaire, and accordingly we can just decide whom we have to refer to psychologist. मैडम, अपार्ट you. फ्रॉम द साइकोथेरेपी, जैसे हमने बात की, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो, जैसे एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो गया, खाली हो गया, तो आप अपनी जिंदगी को भरा पूरा रखिए। आप अपनी हॉबीज को परस्यू कीजिए। आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपको बुनाई करना अच्छा लगता है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, इन सब चीजों में आप इंडल्ज हो सकते हैं। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज या काम अपने लिए ले सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को बिजी रखें, या जिन चीजों में आपको खुशी मिलती है, ये काफी हद तक आपको मदद करते हैं इस कठिनाई भरे समय में अपने आप को सेल थ्रू कर जाने के लिए। और डॉक्टर इसके ममता, अलावा आपको जैसे रात की परेशानियों के लिए एक स्लीप हाइजीन टेक्निक्स होती हैं, जैसे जो पुराने जमाने से हमारे साधु संत सब कहते आए हैं कि समय पे उठो, समय पे सो, दिन का काम दिन में करो, रात का रात में करो। प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम ऑल्टर करते हैं, वो अलग बात है, बट अदरवाइज आप कमरे में शांति रखिए, लाइट बंद करिए, गैजेट मत चलाइए, मोबाइल मत देखिए, टीवी मत देखिए, आपको नींद अच्छी आएगी। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो नेक्स्ट डे आपको जो है मानसिक थकान, शारीरिक थकान थकान वो दोनों ही कम लगेंगी। तो ये कुछ चीजें और हम ऐड कर सकते हैं जिसमें मेडिकेशन वाला पार्ट नहीं है, जस्ट हमारी लाइफस्टाइल और लाइफ एंटेंगलमेंट को हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर ममता, आप क्या जोड़ना चाहेंगी? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि एक मी टाइम होना चाहिए। मी टाइम मतलब ओनली फॉर मी, दैट इज हॉबी क्रिएट। जो मैडम ने बोला अभी, ज्योति मैडम ने, एक हॉबी बहुत जरूरी है। आई जस्ट, इफ यू हैव टाइम, आई वांट टू शेयर वन Yes, yes. इंसिडेंट। Please, A please. menopausal Go ahead. woman, she was a widow, and she was the only bread earner, and she had 3 children. She was menopause at a very early age, at about 42, 43 years. Then she came to me with problem of only mental depression, anxiety. So, and I gave her some antidepressant for a very short time, and I asked her, "What is your hobby?" She told me that she likes बुनाई, जैसे मैडम ने बोला, और रुमाल जैसे हैंडकरशिप तैयार करना उसको अच्छा लगता है। Then I asked her, just make one good handkerchief for me. And she did it, and she made at least 15, 20 hanky, and for the whole office of my clinic. And she told me that it gave me immense pleasure, and that day she did not take on 3 days she did not take antidepressant also, because she was doing that thing and she felt sleepy and she felt asleep also. So बुनाई और हो या रीडिंग बुक्स हो, गार्डनिंग हो और पेंटिंग हो, so it is very important, and we should also develop, doctors also can develop some hobby, so that we can have some me time, and we can keep these depressions away. तो इसको अगर शॉर्ट में बोलूं, ये कहते हैं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बिल्कुल। बहुत जी और लिए आप सबसे औरों के लिए, अब थोड़ी सी हाँ, जिंदगी अपने लिए भी जी लीजिए। और उसके लिए ये मत सोचिए, हाय मैंने 2 घंटे 1 घंटे अपने लिए लगाया, हाय मैंने इतनी देर में बच्चे के लिए रोटी बना ली होती है, हस्बैंड के जूते साफ कर लिए होते। प्लीज, बहुत कर लिया है। तो आप थोड़ा सा अपने लिए जीने की कोशिश करिए। ये जैसे बहुत आप अपने जरूरी लिए है। जीने की कोशिश करेंगे, दुनिया वैसे ही बहुत सुंदर लगने लगी। अब मुझसे लोग पूछते हैं, आप इतने वेबिनार क्यों करती हैं? मैं ये वेबिनार अपने लिए करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ देखिए, आपसे बातें कर रही हूँ, मेरी 3 सहेलियां जिनसे शायद मैं मिल नहीं पाती जी, रूटीन में, आज हम तीनों साथ बैठे हुए हैं, आराम से, ऐसा लग रहा है कि एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। और आप पता नहीं कितनी नई सहेलियां बन रही हैं, उनसे हम बातें कर रहे हैं। जो भगवान ने हमें एक प्रिविलेज लाइफ दी, कि इस समय में जब इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं थी, लेकिन तब भी हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ने दिया, हमें एजुकेट किया और हमें इंडिपेंडेंट वुमेन बनाया। और जो भी हमने इतनी जिंदगी में सीखा, आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, जो भी आप में से बोलना चाहिए, किसी ने थायराइड और पीसीओडी रिलेशन विद मेनोपॉज पूछा है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसके बाद फिर हम इसको बंद करेंगे और अगले शुक्रवार को, लास्ट शुक्रवार को फिर मिलेंगे पार्ट 2 स्टेइंग हेल्दी में। बताइए, आप में से जो भी इनका पीसीओडी का प्रॉब्लम मेनोपॉज में सॉल्व करना चाहता है, या
थायराइड का? जी, क्योंकि मैडम ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन है, और जैसा कि हमने मेडिकल स्क्रीनिंग की बात की थी कि मिड लाइफ में ये सारी चीजें बड़ी सारी रहती हैं कि आप अपना थायराइड लेवल कराइए, शुगर लेवल कराइए, क्योंकि इस उम्र में ये बीमारियां प्रेवलेंट होने की संभावनाएं रहती हैं। तो मान लीजिए हमें पता लग ही गया, तो ये भी कॉमन बात है कि इन क्रॉनिक बीमारियों के साथ में खास तौर से थायराइड, मिड लाइफ में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, इरिटेशन, एंजाइटी कॉमन है। इट इज अ कॉमन कॉम्बिनेशन कि जिन महिलाओं को मान लीजिए पीरियड्स के आसपास के टाइम पे मूड स्विंग हुआ करते रहे हों पहले, उनको, या प्रीवियस मेंस कभी मेंटल इलनेसेस की या डिप्रेशन की हिस्ट्री रही हो उनको, जिन महिलाओं को थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या रही हो उनको, जिनकी फैमिली में मेंटल डिसऑर्डर्स के कोई लक्षण रहे हों उनको, उन सब लोगों को इस उम्र में मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप अपनी जो भी परेशानी है, जैसे थायराइड की दवा खा रहे हैं, तो थायराइड की दवा के साथ से इम्प्रूवमेंट होना यूजुअली होता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हमें एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत, जैसे कभी थोड़े एंटी डिप्रेसेंट्स लेने की या एंटी एंजियोलिटिक्स लेने की फॉर द शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड जरूरत पड़ती है। एंड जैसे अभी शर्मा मैडम ने सुनाया कि उनकी एक पेशेंट हैप्पी हो गई और उसने अपनी दवाइयां तक भी बीच में नहीं खाने की जरूरत पड़ी, उसने वो वैसे ही खुश थी। लेकिन यहाँ एक टिप देना मैं चाहूंगी कि ये दवाइयां जो है अपनी मर्जी से अपने को बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम सडनली इनके विड्रॉ करने का, कम करने का एक तरीका होता है जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। तो हमें अपने डॉक्टर को भी ना अपने ग्रुप में ले लेना चाहिए कि भाई हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं क्या। तो वो आपको तरीका बता देंगे कि हाँ इसकी डोज इतनी कम कर दीजिए, फिर इतने दिनों बाद इतनी कम कर दीजिए, उस तरीके से आप कम कर सकते हैं। पीसीओएस साथ में इन्होंने मेंशन किया है। पीसीओएस एक ऐसी चीज है जो आपके साथ एक बार है तो आपके साथ एक बार है, उसको जिंदगी भर आपको थोड़ा लाइफस्टाइल से मैनेज करते रहना। ऐसा कभी नहीं होता कि हमको पीसीओएस था, हमको अभी ठीक हो गया, अब हमको फिर से पीसीओएस आ गया। पीसीओ एक सिंड्रोम है, एक एंटिटी है जो आपके साथ में रहती है, और आप बहुत सारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से उसको मैनेज कर सकते हैं। मगर अगर आपको इरिटेशन, डिप्रेशन इस टाइप का कुछ सिम्टम लग रहा है तो उन्होंने पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो जितने सारे एडवाइजेस हुए अभी कि हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये सब करना चाहिए, थायराइड की दवाई खानी चाहिए, उसके साथ एक काउंसलिंग भी ले लेनी चाहिए। Okay. तो हम लोग Hypothyroidism अभी, is very हाँ जी, common. Hypothyroidism is very common in menopause. 1 in 6 women suffer from hypothyroidism, and many symptoms they overlap, hypothyroidism and menopausal symptoms. So one screening test is very, very important. That is TSH level for all the women in the menopause clinic. या मैडम ओवर सप्रेशन ऑफ थायराइड का भी नहीं होना चाहिए, TSH का ओवर सप्रेशन भी नहीं होना Yeah. चाहिए। Like the reproductive age, we should not suppress the TSH to the very normal level also. It is not required, I think. यस, ये एक बहुत ही जरूरी बात डॉक्टर ममता ने बताई, क्योंकि आप लोग जब यंग होते हो हमारे पास आते हो, हम कहते हैं अपना TSH कम रखो, 3 के करीब रखो, 3.5 के करीब रखो, लेकिन ये बड़ी उम्र पे एप्लीकेबल नहीं है। बड़ी उम्र पे TSH का लेवल हम लोग 10 तक लेते हैं, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ग्रेजुअल नहीं बढ़ रहा है, या आपकी पुरानी हिस्ट्री नहीं हो। बहुत टाइट रखने से वो अपने अलग किस्म के प्रॉब्लम कर सकता है। तो आज के सेशन में हमने आपको हर पहलू के बारे में अवगत कराया कि किस ढंग से अपनी लाइफ को आप सुधारेंगे, और किस ढंग से अपनी जांचों के ऊपर ध्यान रखते हुए और अपने प्रिवेंटिव मेजर्स को लेते हुए वैक्सीन लगाइए। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, कि अपनी जिंदगी में खुशियां भरना आपके हाथ में है, कोई किसी और के हाथ में नहीं है। तो जो कुछ आप जिंदगी में नहीं कर सके, आपने नाचना था, गाना था, पेंटिंग करनी थी, कुछ भी करना था, जैसे डॉक्टर ममता ने बताया उनको हैंकी बनाने का शौक था, तो कोई ना कोई हॉबी को अपनाइए और उसके साथ खुद के साथ खुश रहना सीखिए। क्योंकि आप, ये एक बात मैं कह रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को सबको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन मेरा ये मानना है, हमारे हिंदू धर्म में जो एक चीज समझाई गई है कि 50 साल के बाद आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने हैं,
वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाना है, जहां आप हैं और प्रभु है, और उसके लिए तैयारी करनी है। तो कुछ मी टाइम तभी तो होगा जब आप अपने लिए सोचेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते तो सिर्फ आप हैं और रास्ता अकेला है। तो चलिए, रास्ते पे अकेले चल रहे हैं आप, क्योंकि आपके हार्मोन्स तो उड़ गए दोनों, अकेले तो आप हैं ही, बस अब आपको समझना है कि आप अकेले हैं। तो डॉक्टर ममता, डॉक्टर ज्योति और डॉक्टर विनीता, आज का हम दीपिका को हम हैंड ओवर करते हैं। दीपिका आपसे एक वो करेंगी कि कैसे आप लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करिए, और उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से। ओवर टू यू दीपिका। Thank you, ma'am. Thank you, all the experts. Thank you so much, Dr. Ragini Agarwal, ma'am, Dr. Jyoti Jaiswal, ma'am, Dr. Mamta Sarva, ma'am, and Dr. Vinita Medgood, ma'am. So the question answers have already been taken, and बहुत सारे question answers आप लोगों ने भी address किए, ma'am. हम लोगों का एक prize distribution होता है at the end of the session, in which we'll have some random numbers being picked up by our experts. तो हमारे साथ आज 4 experts हैं, और between 1 to 10 आप कोई भी अमित between 1 to 12 कोई भी number आप choose करें, and we will announce that person as the winner. So Dr. Ragini ma'am, would you like to choose one number? मैं तो रश्मि जी को लेना चाहूंगी, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं। Okay. Okay. मेरी ओर से रश्मि जी आज की So विनर है। congratulations, Rashmi. You are one of the winners. Dr. Jyoti ma'am, if you would like to have a look at the attendees list, and you could. अच्छा, ये चेक बॉक्स से देखकर Yes, ma'am. पार्टिसिपेंट्स को Attendees list, देखिए, if you can have a look. या ओके चैट बॉक्स वालों को भी दे सकते हैं। From the participants. फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। Yeah, participants, there is attendees and panelists. So you look in the attendees list and you find the list over here. I'll read out. There's Deepika Chauhan, Dr. Amjad Satar, Dr. Nupur Gupta, Lakshmi Burad, Poonam Bichu Puria. लक्ष्मी बुराड़, नाम Lakshmi. पसंद आ गया मुझे। अच्छा, ठीक है मैम. So congratulations, Lakshmi. लक्ष्मी इज माय मदर्स नेम Oh, आल्सो। that's nice. Okay. Okay, so we have Dr. Vinita. Would you like to pick up one name from here? Yeah. Miss Usha Banerjee. Okay. She has written, she has really liked it, and she has given a good feedback. Yes, ma'am. So congratulations, Usha. You are one of the winners. And now we have the 4th winner to be announced by Dr. Mamta. So ma'am, if you'd like to pick I up. cannot see the name, but the PCOS and thyroid के बारे में जो पूछा, Okay. उनका नाम है, I cannot see the name. हाँ, उषा I think. नहीं उषा नहीं, वो दूसरी है, मैं बताता हूँ। Poonam. Poonam is already one Poonam. of the winners, ma'am. She's already one of. पूनम अभी तक नहीं थी, पूनम है वो। ठीक है, पूनम। मैंने रश्मि को किया था, इन्होंने लक्ष्मी को, इन्होंने उषा को, और डॉक्टर ममता ने पूनम को। Poonam, right. Poonam. So we have 4 winners here. Congratulations to all the winners. And please do, as always, put your phone number. I'll be just writing down the WhatsApp number for you to write down your phone number so we can contact you here. पर्सनल पे डालिएगा दीपिका के। Many congratulations to all the winners, and really Ragini madam and Dr. Deepika. We are I'm feeling very happy today that we could discuss these common things जो हमें normally सब लोगों से अपनी फैमिली में या जब कभी भी हम कहीं कॉमन जगह पर जाते हैं जहाँ मिड लाइफ एज के लोग रहें, वहाँ हमें डिस्कस करना चाहिए। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द अटेंडीज कि जो बातें आज यहाँ सीखी हों या अच्छी लगी हों वो अपने घर में जाके आप शेयर करें, स्क्रीनिंग के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो ये जो जैक्सन पाल ने और हमारा माई सखी जो initiative स्टार्ट है. किया है,
वो मोटो जो है वो कंप्लीट हो, और हम यही सब लोगों से उम्मीद करते हैं। एक Thank you छोटी so सी much. बात मैं भी ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि हम लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उसमें एक बात हमने ऐड करनी थी, खास करके वनीता जी ने जब हमें वासोमोटर सिम्टम के बारे में और डिप्रेशन के बारे में बताया, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जब वासोमोटर सिम्टम्स भी हो रहे हैं, आप यंग भी हो और साथ में डिप्रेशन भी हो रहा है, तो द बेस्ट थेरेपी इज लो डोज हार्मोन थेरेपी फॉर अंडर सुपरविजन फॉर द शॉर्ट टाइम। उससे कोई बुराई नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। नो डाउट इट इज अ गोल्डन ट्रीटमेंट फॉर वासोमोटर सिम्टम्स। Thank तो you very आप much. सभी अपने डॉक्टर्स के पास पहुंचे ताकि वो आपको मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी की अगर जरूरत हो तो आपको दे सके। Right, ma'am. So now we just take you quickly through our MySakhi initiative. This is a website that has been developed, mysakhi.in, जिसके अंदर हम लेडीज की जो भी विमेन हेल्थ से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फ्रॉम एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मेनोपॉज तक, और सब कुछ इसके बारे में डाला हुआ है हमने। इट इज वन ऑफ द CSR इनिशिएटिव्स। ये जो mysakhi.in एक वेबसाइट है एजुकेशनल कंटेंट वाली, इट इज वन ऑफ द CSR इनिशिएटिव्स। और इनिशिएटिव्स में हमने इस तरह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड में गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉयलेट फैसिलिटीज बनाई हैं, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस भी करा है फॉर यंग स्कूल गर्ल्स। सो इन mysakhi.in you will find a lot of reading material। पब्लिक के लिए है ये, open for all। You can go through, read about the symptoms and all, अलग अलग क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मीनोपॉज की। और ये आज के जैसे वेबिनार हुए हैं, इस तरह हमारे सारे वेबिनार्स इस इवेंट्स पेज के ऊपर लिस्टेड हैं, जहाँ पे वॉच नाउ के बटन से आप पुराने वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, एंड रजिस्टर नाउ वाले बटन से आप नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हमारा वेबिनार जो होना है लास्ट फ्राइडे, so this will be on 27th of December, and it will be a part 2 of the same जो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक था, staying healthy at midlife, in which the experts will be discussing about the tests, and we'll have Dr. Ragini lead us through these tests, what all tests are mandatory, what we should actually be going in for. So do join us, and thank you all so very much for joining in our webinars. Do keep these webinars interactive with all your questions, and we are happy to be there to spread any awareness that might be required for menopause. Thank you so much. Thank you all the experts Thank you and so the much. attendees. Thank you. Thank you. नमस्ते। Bye bye. Namaste. Bye-bye. Thank you for the opportunity.